Going to discuss a very basic concept and a capacitor and capacitance. What is a capacitor? Today we are going to discuss what is a capacitor, what is the purpose of a capacitor, what is capacitance, why we use the term capacitance, what is the basic what is the basic working principle of the capacitor, how capacitor can charge, and how a capacitor can be used in an electrical circuit, and we will also discuss how energy is stored inside the capacitor. For that, let's first define a capacitor. What is a capacitor? The capacitor basically is a component that has the ability to store charge. Then how we can categorize a capacitor? There are two wide categories in the electrical components. We have already it's our previous knowledge that there are few electrical circuit components which are known as active components, and few are listed as passive components. Let's revise what are active components and what are passive components. The active components are those components which provide energy or power to the electrical circuit, and passive components are those components which draws energy from the electrical circuit. Capacitor is basically a passive component. It draws energy and stores it in itself. Now let's make a capacitor. What is the construction of the capacitor? We have already discussed, and it is very much common. The very much common construction of the capacitor is a parallel plate capacitor. Basically, there are two plates, two metallic plates, and these two plates are separated by any medium. The separating medium between these two plates is known as a dielectric, and these two plates are connected through some battery. If these plates are connected to a battery, then we can say the capacitor is going to be charged. So this is the basic concept of the capacitor, that it has two parallel plates and a dielectric medium separating them. Now let us discuss few applications of the capacitor where we can use a capacitor. Capacitor is usually used to produce electric fields. How capacitor can use electric fields? Basically, a parallel plate capacitor gives a uniform field that deflect electrons. Now where these capacitors are used, these capacitors are basically used in the televisions, as we are familiar with the old televisions, not the latest ones. The latest ones are usually known as light emitting diodes, but the previous ones, those uses electron beams, and these electron beams were guided with the help of the electric field produced by parallel plate capacitors. This is the first application for the capacitors. कैपेसिटर्स की एक और एप्लीकेशन जो हम यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट एप्लीकेशन इज़ कैपेसिटर्स कैन स्मूथ आउट द वेरिएशन इन द लाइन. वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं, दे प्रोवाइड अ डीसी करंट. इनकी जो करंट की वेरिएशन है आपके पास, दे प्रोवाइड डीसी करंट्स. तो आपके पास क्या होता है कि अगर वोल्टेज के अंदर किसी किस्म की वेरिएशन आ रही है, तो ये वेरिएशन को क्या कर सकते हैं, दे कैन स्मूथ दम आउट. और ये जब स्मूथ दम आउट करेंगे तो हमारे पास जो भी डिवाइस, जिस भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर से पहले हमने कैपेसिटर यूज़ किया होगा, लाइक अगर हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, उसके अंदर स्टोर्ड डाटा को वो डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं कैपेसिटर्स. इसी तरह आप लोगों ने एफएससी में एक और एग्जांपल पढ़ी हुई है एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटर की, और वो एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटर क्या थी, अगर आपको याद हो तो हम किस तरह से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को चेंज करते हुए टीवी या रेडियो की जो है वो रेडियो का चैनल सेट किया करते थे.
So these are the main applications of the capacitors. Now moving on towards the capacitance. What is capacitance? Capacitance basically is the ability. Basically, what is capacitor? Capacitor can store charge. Is a device that can store charge. What is capacitance? It is the ability to store charge. Now, this ability to store charge is mathematically defined as the ratio of charge to voltage. That is also written in the form of equation. C is the symbol for capacitance, Q is the symbol for charge, and V is the symbol for voltage. So C is equal to Q over V. Now rearranging the equation, we can calculate the amount of charge. We can calculate the amount of charge stored inside the capacitor. अगर आपको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है और उसके अक्रॉस लगने वाली वोल्टेज की वैल्यू मालूम है, तो आप किसी भी कैपेसिटर के अंदर उस स्टोर्ड चार्ज की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन सी. क्यू इज इक्वल टू सी वी. अच्छा जी, अब कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जहन में रखिएगा, हमने बात की थी कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर बेसिकली क्या है आपके पास? कैपेसिटर इज़ अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेट्स. जिन पैरेलल प्लेट्स को आपने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है. तो अगर आपके पास ये कैपेसिटर का एक एंड आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है बैटरी के, और एक एंड आपने जो है वो अपनी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास ये कैपेसिटर जो है, इसकी एक प्लेट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और एक प्लेट क्या हो जाएगी आपके पास? नेगेटिव. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, बेसिकली क्या है आपके पास? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, और ये चार्जेस जो हैं ये क्या कर रहे हैं? एक अदद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है आपके पास? चार्ज जो है वो स्टोर होता है. तो ये जो स्टोर्ड चार्ज है, बेसिकली ये आपके पास, आप इसको वर्क डन कह सकते हैं, और ये वर्क W से इसको हम चार्ज या इसको हम एनर्जी कहेंगे. हम इसको वर्क डन भी कह सकते हैं. अब ये वर्क डन इसको क्यों कहा है? बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस डिस्कशन में ये बात की थी कि जो वर्क डन है ये हमारे पास बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने U से रिप्रेजेंट किया है अपनी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर. तो W इज़ इक्वल टू U. तो यहाँ से हम लोग अपनी इस इक्वेशन में भी बेसिकली यहाँ पर हम एनर्जी की बात अगर करते हैं, तो ये हमने U इज़ इक्वल टू 1/2 CV². ये बेसिकली आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इक्वेशन है, कि अगर आपके पास एक अदद कैपेसिटर है और उसके अंदर कोई उसकी वो अगर पैरेलल प्लेट केमिस्ट्री रखता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो उसकी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, उस एनर्जी के लिए जो इक्वेशन आएगी आपके पास वो आएगी W इज इक्वल टू 1/2 CV². इस इक्वेशन को हम फर्दर आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे और ड्राइव भी करेंगे कि ये कैसे आती है. तो W आ जाएगा, या फिर W की जगह आप इसको लिख सकते हैं U इज़ द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ पे यूनिट्स डिस्कस कर रहा है कि आपके पास यूनिट्स कौन कौन से हैं. तो वर्क डन जो है वो एनर्जी इन जाउल्स होगी हमारे पास, और कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे पास आएगा फैरेड. अब फैरेड को भी हम आगे चल के डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ फैरेड, और उसके अलावा क्या है आपके पास? V फॉर वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स. जी, अब अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास बेसिकली आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D के बराबर. और ये बेसिकली आपके स्कोप से, इसकी डेरिवेशन जो है वो आपके कोर्स के स्कोप में नहीं है, लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी है कि कैपेसिटेंस की अगर कहीं बात की जाती है तो वो पूछता है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही होती है. तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बेसिकली दो पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही होती है. तीन पैरामीटर्स पर हमारे पास ये डिपेंड कर रही है. द फर्स्ट पैरामीटर इज़ द
हमारे पास कैपेसिटेंस जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास to the area, and it is also directly proportional to the relative dielectric constant, and it is inversely proportional to the distance between the plates. तो बेसिकली अगर आप बात करें तो आप बात कर सकते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो दो चीज़ों की वजह से दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है. फर्स्ट, एरिया ऑफ द कैपेसिटर, एंड सेकेंड, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. इन दोनों के अलावा हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो किसी थर्ड पैरामीटर पर नहीं बेस कर रही. बेसिकली आपके पास ई जो एप्सिलॉन नॉट है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक. आप अगर जिस तरह जो डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक जो है उसको फ्री स्पेस रखा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसी सूरत में आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी. फिर हम ये बात करेंगे कि आपके पास क्या होगा. कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ओनली डिपेंड्स अपॉन two parameters. The first one is area of the plate, and the second one is the separation between the plates. Now let us discuss the process of charging, कि चार्जिंग किस तरह से होती है. हमने क्या किया, एक अदद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इसके दरमियान आपके पास क्या मौजूद है, एक अदद डाइलेक्ट्रिक मौजूद है. इनिशियली हमने क्या किया, अपने चार्ज को बेसिकली ये जो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया. जैसे ही आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो अब बैटरी जो है, ये बैटरी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल को आपने प्लेट ए के साथ कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को आपने प्लेट बी के साथ कनेक्ट कर दिया है. अब ये जो आपकी बैटरी है वी हैव ऑलरेडी नोन दैट कि बैटरी जो है वो बैटरी के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम हमेशा डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वी प्लस माइनस वी माइनस. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. जब चार्जिंग आपके पास स्टार्ट हुई है, यहाँ पर हम डायग्राम में ये बड़े विजिबली देख रहे हैं कि नेगेटिव टर्म आपकी जो प्लेट ए थी इस पर मौजूद जो नेगेटिव चार्जेस थे, दीज नेगेटिव चार्जेस आर बीइंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ योर बैटरी. और जो आपकी प्लेट बी है, ये प्लेट बी के ऊपर क्या हो रहा है, बेसिकली द नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस. अब हम यहाँ पर यहाँ पर आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दे विल गेट अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट को शो कर रहे हैं, हम कन्वेंशनल करंट को शो नहीं कर रहे. तो डायग्राम के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है, जिसमें कह रहा है कि आपके पास क्या होगा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे they will be attracted towards the positive terminal of the positive B plate, पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द बी प्लेट. और ये वहाँ जाकर क्या करेंगे, पॉजिटिव बी प्लेट पर मौजूद पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो उसमें स्टोर होने लगेगा. अच्छा जी, अब एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, करंट विल बी फ्लोइंग. करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक आपके पास दोनों एंड्स, हमारे पास अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये आपके पास सी साइड है, ये जो बैटरी है इसको हम सी का नाम दे देते हैं, और ये जो है आपके पास पॉइंट डी है. ये आपके पास जो कैपेसिटर है बेसिकली इट्स पॉइंट डी. अब सी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी ये वैल्यू लिखी गई है, और डी पॉइंट के ऊपर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ स्मॉल वैल्यू हो सकती है, उसको हम वी डैश का नाम दे देते हैं. तो जब तक आपके पास पॉइंट सी और पॉइंट डी पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं हो जाती, तब तक आपके पास करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा. तो करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक आपके पास दोनों टर्मिनल्स पर, दोनों पॉइंट्स पर आपके पास वैल्यू ऑफ द वोल्टेज बराबर नहीं हो जाती. अब क्या हुआ, आपके पास दोनों तरफ आप देख सकते हैं डायग्राम में भी ये क्लियर हो गया कि कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज. किस तरह से कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया कि आपके पास जितनी भी पॉजिटिव ए प्लेट पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो चुके हैं, और बी प्लेट पर आपके पास सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो चुके हैं, और जितना आपकी बैटरी की पोटेंशियल की वैल्यू थी उतनी ही पोटेंशियल
आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास प्लेट ए और प्लेट बी के दरमियान डेवलप हो चुका है। तो दिस इज़ द स्टेट जहाँ पर आपके पास कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, अब आप क्या करेंगे, अपने सोर्स को रिमूव कर देंगे, यानी जो बैटरी आपने इसके साथ लगाई हुई थी उस बैटरी को रिमूव कर देंगे और कैपेसिटर आपके पास क्या है, फुली चार्ज है। हाँ, अब आप क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अपने इस कैपेसिटर के साथ कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट लगाती हूँ जो कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या जो इस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। उसके लिए हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि एक अदद आप अगर लाइट बल्ब ले लेते हैं, तो ये जो लाइट बल्ब है, ये लाइट बल्ब क्या करेगा, कैपेसिटर के अंदर मौजूद जितनी भी अमाउंट ऑफ चार्ज था उस अमाउंट ऑफ चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी कंज्यूम कर लेगा और आपका जो कैपेसिटर है वो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्जिंग आपके डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा जी, अब मूव करते हैं कि कैपेसिटर विद स्टोर्ड एनर्जी कैन एक्ट एज अ टेम्परेरी बैटरी। और वही बात मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बता दी कि बेसिकली क्या हुआ, जब आपने एनर्जी स्टोर कर ली तो कैपेसिटर जो है उसने क्या किया, उसने कुछ अमाउंट ऑफ कुछ देर के लिए एक अदद बल्ब को रोशन किया, लेकिन बल्ब कॉन्टीन्यूस नहीं चलता रहा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड चार्ज जो था वो ख़त्म हो गया, और जैसे ही वो स्टोर चार्ज ख़त्म हुआ वैसे ही हम कहते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर बल्ब जो होगा वो ऑफ हो जाएगा। नाउ कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, बेसिकली अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद करें तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था सी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने भी लिखा था और वो था C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस की, तो हमें पता है कि हमारे पास जो Q है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 वोल्ट से। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास एक कैपेसिटेंस का यूनिट बेसिकली दिस वाज नेम्ड एज फैरेड, इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके पास 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है जी, एक फैरेड जो है आपके पास 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स कि हम अगर हमारे पास एक छोटी सी सैम्पल प्रॉब्लम दी गई है कि अगर आपके पास क्या है, एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर क्या कर रहा है, अ स्टोरेज कैपेसिटर ऑन अ रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप। आप एक कंप्यूटर की एग्जांपल ले रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर क्या लगी होती है, हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ चिप्स होती हैं जिसमें मेमोरी जिसमें से मेन जो है वो तीन तरह की आपके पास मेमोरी चिप्स होती हैं। एक मेमोरीज आपके पास बेसिकली दो होती हैं, मेन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप्स होती हैं फर्दर, एक आपके पास रोम्स होती हैं और एक आपके पास रैम्स होती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास आ जाती हैं हार्ड डिस्क, CD रोम्स, फ्लैश ड्राइव्स, एंड यू कैन ऑल्सो नेम दैम एज USBs। तो ये जो आपके पास बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज में अभी मैंने कहा कि आपके पास रैम और रोम हो सकती है। वो कहता है कि आपके पास एक रैम चिप है, रैम चिप है। अब रैम चिप के ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास आ रही है 0.05 पिको फैरेड। अब ये पहले से ऑलरेडी यूनिट्स को डिस्कस करके आ चुके हैं कि फैरेड जो है हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट है, लेकिन हम जनरली जब भी कैपेसिटर्स का जिक्र करेंगे तो हमारे पास बहुत कम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स होते हैं, तो उनको हम लोग यूजुअली माइक्रो फैरेड्स में या फिर पिको फैरेड्स में ही यूज़ करते हैं। अब एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें बता दी गई है और वो कह रहा है इफ़ इट इज़ चार्ज टू 3.5 वोल्ट। अब क्या है आपके पास, आपने इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक अदद बैटरी लगाई और उस बैटरी ने उसको एक चार्ज कर दिया। चार्ज कितना कर दिया, उसने इसको 5.3 वोल्ट्स तक चार्ज कर दिया। जब 5.3 वोल्ट्स तक चार्ज कर दिया, फिर क्या पूछता क्या है अब हमसे
हमें उसने कैपेसिटर की बात, हमें उसने क्या बता दिया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बता दी। और दूसरी चीज़ उसने हमें क्या बता दी है, दूसरी चीज़ उसने हमें वोल्टेज बता दी है, पोटेंशियल डिफरेंस बता दी है। ठीक है जी। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इट्स नेगेटिव प्लेट। अच्छा जी, अब हमने क्या बताना है, हमने बेसिकली चार्ज की वैल्यू बतानी है। लेकिन चार्ज की वैल्यू आपके पास अगर आपको याद हो तो चार्ज की वैल्यू जो है वो, हमें उसने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताने को कहा है, हमें उसने चार्ज की अमाउंट नहीं बताने को कहा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो अपने लिए हमने एक इक्वेशन, आपको याद होगा हमने जब पहले प्रीवियसली बात की हुई है, और उसमें हमने ये बात पढ़ी है कि आपके पास Q इज़ इक्वल टू एन ई के बराबर होता है अगर हम अपने पास कैपिटल Q की बात करते हैं। तो आपके पास क्या है, बेसिकली यहाँ से हम चाह क्या रहे हैं, हम n निकालना चाह रहे हैं। तो n निकालने के लिए हमने अपनी ये इक्वेशन जो है इसको रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ गई। आपके पास क्या आ गया है, कैपिटल N इज़ इक्वल टू Q ओवर E। अब Q जो है बेसिकली Q इज़ द चार्ज। हमने अभी इक्वेशन पढ़ी कि आपके पास चार्ज जो है वो बराबर होता है CV के। C जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और V जो है वो बेसिकली आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आपके पास कैपेसिटेंस कहाँ है, अगर आप देखें तो ये आपके पास कैपेसिटेंस लिखी गई है, और ये आपके पास क्या लिखा गया है, डेल्टा V की वैल्यू लिखी गई है। तो हम क्या करेंगे, अपनी ये इक्वेशन के अंदर C और डेल्टा V की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम लोग सर्किट के अंदर कैपेसिटर को किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। भाई मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा जो कैपेसिटर है दैट इज़ अ पैसिव कंपोनेंट। अब ये जो पैसिव कंपोनेंट है, इस पैसिव कंपोनेंट में क्या है, हम लोग उनके पास, हम सिंपल क्या करें, इसको दो डिफरेंट वेज में कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इससे पहले हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें हमने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। फर्स्ट वे जो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है दैट इज़ पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या है आपके पास, बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं, आप अपना कोई भी कंपोनेंट, यहाँ पर हम लोग अगर अपनी डायग्राम देखते हैं, फिगर ए को देखते हैं, तो फिगर ए के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास दो अदद कैपेसिटर्स हैं। और ये दो अदद कैपेसिटर्स जो हैं इनको किस तरह से अरेंज किया हुआ है कि वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो है, बोथ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अगर हम अपनी राइट साइड पर देखते हैं तो हमारे पास, अगर हम ये C1 जो कैपेसिटर है, अगर हम कैपेसिटर C1 की बात करें तो कैपेसिटर C1 की इस प्लेट को हम A का नाम दे देते हैं और इसको हम B का नाम दे देते हैं। सिमिलरली C2 की प्लेट को A का नाम दे देते हैं और इसको हम B का नंबरिंग कर लेते हैं। फॉर C1 A1 एंड A2, फॉर C2 आपके पास प्लेट्स हैं A2 एंड B2। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, तो जो प्लेट A1 है आपके पास कैपेसिटर की और प्लेट A2 है, बोथ दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू सिंगल पॉइंट। इसी तरह प्लेट B2 और प्लेट B1 जो है, बोथ दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द सिंगल पॉइंट। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि इन अ पैरेलल कनेक्शन हम हम लोग एक पॉइंट के ऊपर कंपोनेंट्स को ज्वाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो प्लेट A1 है और प्लेट A2 है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो एक कॉमन पॉइंट के पर जुड़ी हुई हैं आकर, और इस कॉमन पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दिया हुआ है उसने A का। इसी तरह आपके पास प्लेट B2 और B1 और B2 जिस कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई हैं उसको नाम दिया है उसने B2 का। हम यहाँ पर मल्टीपल अपने पास और कैपेसिटर्स जोड़ सकते थे। अगर आपके पास एक और कैपेसिटर यहाँ पर लगा होता सेंटर में, इसको हम C3 का नाम देते, तो ये जो C3 था इसकी प्लेट A3
ये पॉइंट ए पर जुड़ी हुई है और इसकी प्लेट B3 जो है ये पॉइंट बी पर जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर मोर देन 2 के लिए बी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि आपके पास जो कैपेसिटर है दे कैन बी अरेंज्ड किस तरह से, अगर ये पॉइंट टू पॉइंट आपके पास इनकी प्लेट्स जो हैं कंपोनेंट जो एक पॉइंट पर मल्टीपल कैपेसिटर्स एक पॉइंट पर आकर जुड़ रहे हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंसेस कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास एक अरेंजमेंट है, बेसिकली आप अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज अ होल कैपेसिटेंस की वैल्यू को देखेंगे कि एज अ होल आपका सर्किट कितनी कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम एज अ होल सर्किट की कैपेसिटेंस अगर निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली अपनी इक्विवेलेंस, अब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ मैथमेटिकल वर्क करते हैं। अब ये मैथमेटिकल वर्क क्या है, सबसे पहले तो जी हम अपना चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 निकालते हैं। चार्ज की इक्वेशन हमने याद की हुई है और चार्ज की इक्वेशन हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। अब कैपेसिटर हम लोग क्योंकि C1 के लिए निकाल रहे हैं तो Q की जगह Q1 आ जाएगा और C की जगह C1 आ जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस बोथ द टर्मिनल्स, अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ बैटरी कहाँ कनेक्ट करेंगे, पॉइंट A पर, और आप पॉइंट B पर बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ दरमियान में आपके पास बैटरी आएगी। तो बेसिकली क्या होगा, इस पॉइंट A पर वोल्टेज की वैल्यू भी सेम है और B पर भी वोल्टेज की वैल्यू सेम है, और B आपके पास जो भी वोल्टेज आएगी वो अगर पॉइंट A पर है तो वो आपके पास कैपेसिटर की प्लेट A1 पर भी वही होगी और कैपेसिटर C2 जो है उसकी प्लेट A2 पर भी वही वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो C1 और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपने पास डेल्टा V की वैल्यू जो है उसको सेम रखेंगे। अब हम निकालते हैं अपने कैपेसिटर C2 के लिए चार्ज की वैल्यू, और चार्ज की वैल्यू C2 के लिए आपके पास क्या आ जाती है, Q2 इज इक्वल टू C2 डेल्टा V। अब हम क्या करते हैं, हमें एक बात पता है कि टोटल चार्ज जितना भी हमारे पास सर्किट में एंटर होगा, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी, बेसिकली हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, जिसकी एक्सटेंशन में हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है और मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, इसी तरह हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है जो कहता है कि मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी आपके पास टोटल चार्ज इन द सर्किट जो है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। तो हम कहेंगे कि टोटल चार्ज अक्रॉस Q1 C1 एंड C2 जो है वो सेम रहेगा। तो जब ये टोटल चार्ज अक्रॉस C1 एंड C2 सेम रहेगा तो वी कैन से कि हमारे पास जो है टोटल चार्ज Q जो है वो बराबर है Q1 प्लस Q2 के चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 1 एंड चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 2। तो अब क्या है आपके पास टोटल चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जी अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो टोटल चार्ज है इसके अक्रॉस हमारे पास बेसिकली क्या है, जो कैपेसिटर्स हैं वो कंबाइंड इफेक्ट दे रहे हैं, और जब वो कंबाइंड इफेक्ट दे रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q जो है टोटल चार्ज इज इक्वल टू C इक्वलेंट इनटू डेल्टा V। तो C इक्वलेंट अब क्या करने जा रहे हैं हम, ये जो हमारी इक्वेशन थी दिस वन लास्ट वन, ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू भी हमने लिख ली, Q2 की भी लिख ली और हमने Q की वैल्यू भी लिख ली। अब हमने इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये चार्ज हमें पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम ऑन बोथ साइड्स। तो अगर ये दोनों साइड्स पर सेम है तो हम इसको दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं, और जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, C इक्वलेंट की वैल्यू बन जाएगी। और C इक्वलेंट की वैल्यू आपके पास आपको यहाँ से नज़र आ रही है, वो बराबर है हमारे लिए
किसके बराबर है? वो बराबर है C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इसी तरह अब हमारे पास क्या है, अगर हम इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ समेशन लिखना चाहें तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ समेशन भी लिख सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा का साइन डालेंगे। सिग्मा बेसिकली इट्स रिप्रेजेंटिंग द सम, और n जो है वो n बेसिकली कोई भी न्यूमेरिक आपके पास वैल्यू हो सकती है 1 टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। जितने कैपेसिटर्स होंगे आपके पास, आप उतनी वैल्यू ऑफ n हो सकती है आपके पास। इट n बेसिकली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन द सर्किट, कि आपके सर्किट के अंदर आपने कितने कैपेसिटर्स को अटैच किया हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब आपके पास क्या है, जो डायग्राम है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास क्या है, दो अदद कैपेसिटर्स हैं, और दो अदद कैपेसिटर्स किस तरह से जुड़े हुए हैं। आपके ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो सॉलिड लाइन है, दिस इज़ बेसिकली योर वायर, जो कि वायर क्या कर रही है, आपके कैपेसिटर 1 को कैपेसिटर 2 के साथ जोड़ रही है। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान हमने रखना है कि हमारे पास जो कैपेसिटर 1 है उसकी पॉजिटिव प्लेट वो जुड़ी हुई है कैपेसिटर 2 की नेगेटिव प्लेट के साथ। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एंड टू एंड कनेक्शन किया है। एक कैपेसिटर जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके साथ ही आपके पास, आप कह सकते हैं, आपका दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब क्या कहता है, यहाँ पर हम सीरीज़ सर्किट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम तीन प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप क्या करें, इफ़ वी अटेम्प्ट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी वी मस्ट पास थ्रू ऑल द सर्किट एलिमेंट्स इन द सक्सेशन। सक्सेशन का क्या मुराद मतलब है, वन बाय वन, साथ साथ। आपके पास क्या है, आप पहले क्या करेंगे, आपने एक करंट लिया, इफ़ यू आर कंसिडरिंग द करंट मूव करना शुरू किया फ्रॉम पॉइंट ए से गुजरा। ए से गुजरने के बाद ये किधर जाएगा, ये कैपेसिटर ए पॉइंट से चला, और ये चलता चलता कहाँ आएगा, कैपेसिटर C1 में आएगा। C1 से गुजरने के बाद ये जाएगा आपके पास सीधा C2 के अंदर, और C2 से होता हुआ ये B के अंदर चला जाएगा। अब करंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, करंट हैज़ टू पास थ्रू C1 एंड देन थ्रू C2। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन है, व्हेन अ बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, हम इसके अक्रॉस क्या कर रहे हैं, एक अदद अपनी बैटरी लगा देते हैं। बेसिकली बैटरी में एक टर्मिनल बड़ा और एक छोटा होता है, लेकिन हमने यहाँ पे जो बैटरी लगाई है। अच्छा जी, अभी आपके पास एक अदद बैटरी लगी है इसके अक्रॉस, तो ये बैटरी क्या कर रही है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, डेल्टा वी। तो क्या है, अब आपके पास क्या हो रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इक्वल्स टू द सम ऑफ द पोटेंशियल इस कंपोनेंट के अक्रॉस। अब ये देखिए, यहाँ से ये कंपोनेंट अगर हम कहते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, सॉरी, आपके पास अगर ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ये आपके पास ए जो है, ये अगर आपके पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा है, और ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा है, करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पर आपके पास क्या है, बेसिकली हम बात करते हैं कैपेसिटर की, चार्ज करता है कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, आपके पास प्लेट्स के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाता है तो कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपके पास जो कैपेसिटर C1 है उसकी प्लेट, नेगेटिव प्लेट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बैटरी, जबकि क्या है आपके पास जो इसकी पॉजिटिव प्लेट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बैटरी के साथ। अब ये जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस प्लेट के अक्रॉस, तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू को हम V, अच्छा जी, हम इसको सारे को क्लियर करते हैं और दोबारा से सर्किट अपना बनाते हैं। सर्किट में क्या किया, पॉइंट A के अक्रॉस आपने बैटरी लगाई और पॉइंट B के अक्रॉस बैटरी लगाई।
ये आपने कहा कि ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपने कह दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो चार्ज है, अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन लिखी थी, V इज इक्वल टू V माइनस V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है जी। ये V प्लस और V माइनस क्या है, ये बेसिकली आपके पास वोल्टेज अक्रॉस योर पॉजिटिव प्लेट एंड वोल्टेज अक्रॉस योर नेगेटिव प्लेट है। तो अगर आपके पास कैपेसिटर की ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ी है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको हम V प्लस लिखेंगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको हम V माइनस लिखेंगे। लेकिन अब क्या है, अब क्या हो रहा है, आपने कहा कि करंट क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, वो ए से जा रहा है। ठीक है, तो वो ए से एंटर होगा। और अब क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट फर्दर क्या हम देखेंगे कि आपके पास अब यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको V पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास है C2 में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो टोटल V प्लस का प्लस नहीं आएगा, बल्कि उससे कुछ कम अमाउंट आएगी। तो यहाँ पर हम बात करते कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो है वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इन द सीरीज सर्किट दैट इज़ डिफरेंट। और जो टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वोल्टेज इन द सर्किट आपके पास बराबर आएगी सम ऑफ द वोल्टेजेस के। अब सिंपल क्या है, अलग अलग कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, तीसरी प्रॉपर्टी, हमने दो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया। पहली प्रॉपर्टी हमने कहा कि हमारे पास क्या है, करंट क्या गुजरेगा, एक लाइन में गुजरेगा, हैज़ टू पास थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स वन बाय वन। और उसके बाद दूसरी बात हमने की कि हमारे पास हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, द चार्ज डिलीवर्ड टू ईच कंपोनेंट, ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन हैज़ द सेम वैल्यू। चार्ज की मिकदार कम नहीं हो रही, पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा होगी यहाँ पर। अच्छा जी, अब क्या बात कर रहे हैं, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी इंडिविजुअली कैपेसिटेंसेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं, यहाँ पर भी हम अपने सर्किट का कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहते हैं कि कंबाइंड हमारे पास सर्किट जो है वो कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली हमने चार्ज की इक्वेशन लिखी थी, और चार्ज की इक्वेशन क्या थी आपके पास, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। तो ये C डेल्टा V जो है, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2 निकाला, और हमने भी बात की कि हमारे पास टोटल जो है वोल्टेज की वैल्यू अक्रॉस द कैपेसिटर हमारे पास डिफरेंट सम टोटल वोल्टेज इन द सर्किट बराबर होगी हमारे पास सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस द कंपोनेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी टोटल वोल्टेज जो है उसको वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q ओवर C E V से। और फिर क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे अपनी ये लास्ट वाली इक्वेशन के अंदर। वैल्यूज पुट करने के बाद ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, और इस फॉर्म के बाद हम लोगों के पास, अगर हम यहाँ से चार्ज हम देख रहे हैं, चार्ज हमने बात की अक्रॉस द होल कॉम्बिनेशन, आपके पास चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, तो चार्ज आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। एंड कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और कॉमन लेकर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करने के बाद बेसिकली आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए वैल्यू आ गई। और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर की जो वैल्यू आई है, अब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा भी लिख सकते हैं। और सिग्मा में हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, समेशन में अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये सिग्मा का साइन और ये n एंड देन 1 ओवर C के सबस्क्रिप्ट में n, और n बेसिकली अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द कैपेसिटर्स दैट कैन बी 0 1, दैट कैन बी 2 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक आपके पास चल सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। ओह सॉरी, बिफोर दैट वी हैव अ सैम्पल प्रॉब्लम। अब ये सैम्पल प्रॉब्लम क्या है,
आपके पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक सैम्पल प्रॉब्लम, जिसमें वो कैपेसिटर को इन सीरीज़ भी कनेक्ट करके आपको दिखा रहा है और इन पैरेलल भी कनेक्ट करके दिखा रहा है। और वो कह रहा है कि आपने बेसिकली इन पैरेलल लगे इक्वलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अच्छा जी, कैपेसिटर के लिए उसका सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। डायग्राम में आपके पास बेसिकली जो फिगर ए है, ये फिगर ए आपके पास प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है, और फिगर बी और फिगर सी जो है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर सोल्यूशन। अच्छा जी, अब क्या है जी, आपके पास सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर ए with C1 as 12 microfarad, C2 as 3.5 microfarad and C3 as 4.5 microfarad. This is the part 1 of your problem. आपने क्या निकालनी है? C E Q निकालनी है। देन जी सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये जहन में रखना है हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा वी is equal to 12.5 is applied on the terminal in figure A। दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आप जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो 12.5 है। और अब 12 आपने क्या करना है, आपने चार्ज ऑन C1 निकालना है। तो C1 पर आपने अमाउंट ऑफ चार्ज को निकालना है। अब यहाँ ये ज़हन में रखिएगा कि आपके पास आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टेप 1 में आपके पास क्या करेंगे, हम ये जो आपका सर्किट बना हुआ है बेसिकली, जो आपने दो कैपेसिटेंस इन द सीरीज़ लगाए हुए, इन द पैरेलल लगे हुए ये दो कैपेसिटर्स, इन दोनों कैपेसिटर के लिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे। और इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, उसके लिए आपको देखना है। अभी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू निकालने का तरीका देखा था, उसमें हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की थी, और वो इक्वेशन क्या थी, सी ई क्यू इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये आपने वो इक्वेशन यहाँ रीराइट कर ली, लेकिन सी इक्वलेंट की जगह C12 लिख दिया है अपनी आसानी के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होगी उसको हम फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम CEQ कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करें, कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो जो वैल्यू आई है उसको हमने C12 से रिप्रेजेंट किया है। हमने सिंपल क्या किया, C1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, C2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और दोनों को एडअप कर दिया। एडअप करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी डायग्राम के ऊपर वापस, और डायग्राम जो है वो बेसिकली, अब हमारे पास स्टेप 2 क्या आता है, हमने ये जो पूरा ऊपर वाला अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट की जगह इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो आपके पास आ गया है क्या, C12। अब अगर आप देखें तो C12 एक सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, और C3 जो है वो एक सिंगल कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट अगर आप देखें तो दोनों कैपेसिटर किस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। तो ये जो एंड टू एंड कनेक्शन है, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक अदद सीरीज़ कनेक्शन है। अब आपके पास फिगर ए जो है वो रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होने के बाद वो फिगर बी बन गई, और फिगर बी में आपके पास दो अदद कैपेसिटर्स हैं, और वो दिस कैपेसिटर आर इन सीरीज़। तो अब हम क्या करेंगे, इन सीरीज़ इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस अपनी कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1/C equivalent is equal to 1/C12 प्लस 1/C3। और सिंपल आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपके पास 1/C123 आ जाएगा। दिस इज़ योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और फिर 1/C123 आया है, लेकिन हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास फाइनल वैल्यू आई थी, आप इस फाइनल वैल्यू को क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा जी,
अब नेक्स्ट क्या हम करने जा रहे हैं, अब अपनी इक्वेशन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था कि आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट कहता है कि आपने चार्ज की वैल्यू बतानी है ऑन C1। फिगर 1 को अपने जहन में रखेंगे और क्या हमें करना है, हमें यहाँ पे C1 के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू को बताना है। तो चार्ज की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने इक्वेशन लिखी हुई है, हम अपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर से चलना शुरू करते हैं। अब हम अपने न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम को उल्टा सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर जाते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अंदर मौजूद चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जैसे हमने कहा चार्ज कैन बी कंजर्व्ड, चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो जब चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो हम रिवर्स में चलते जाएंगे और हम अपने चार्ज की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या हुआ, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस अपनी चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट किया। चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि अब आपने अब यहाँ पर क्या बात कर ली कि आपके पास क्या है, ये जो दोनों अब आप वन स्टेप और पीछे आ जाएंगे, यहाँ पर आप Q निकाल आए। अगला स्टेप आपने क्या करना है, इस इक्वेशन पर आना है, इस डायग्राम पर आना है। अब इस डायग्राम में आपके पास हमने भी बात की कि हमारे पास क्या होता है, चार्ज सीरीज़ लगा हुआ, सीरीज़ सर्किट लगा हुआ है। तो हमने कहा सीरीज़ सर्किट में आपके पास जितने कंपोनेंट्स हैं उनके अक्रॉस चार्ज की वैल्यू मुकम्मल रहती है, सेम रहती है। तो इसके अक्रॉस भी जो चार्ज की वैल्यू है वही इसके अक्रॉस चार्ज की वैल्यू है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आया है, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दोनों के अक्रॉस डिफरेंट आएगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों के अक्रॉस अपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपने निकाल ली, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है, 2.58 वोल्ट्स के बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और पीछे जाएंगे। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम अपनी फिगर ए पर आ गए। अब फिगर ए में क्या है, अगर आप देखें तो हमें अभी तक डिस्कस कर आए कि इसके पास जो Q है वही इस पूरे के पास, इसके पास जो Q वही इसके पास Q, और जो इसके पास क्या है, V है। ठीक है जी, इसके पास V, डेल्टा V की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें इसके लिए इन दोनों की वैल्यूज़ मालूम है। हमने कहा था ये जो बेसिकली है दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। तो अब क्या है, हमने C1 निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, इसके अक्रॉस तो चार्ज भी मालूम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है, लेकिन क्या फ़र्क है, अब क्या करना है, हमें क्या करना है, एक सिंगल के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे हम निकाल सकते हैं, हमने बात की थी अगर पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में हर कंपोनेंट के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इधर भी वही इधर भी वही, लेकिन दोनों के अक्रॉस चार्ज की जो है वो डिफरेंट वैल्यू है। हमने कहा इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल C1 के अक्रॉस हमें चार्ज निकालना है, हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है और हमें इसके अक्रॉस क्या मालूम है, चार्ज की वैल्यू मालूम है। तो जब ये दोनों यहाँ हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने पास Q1 निकालने के लिए इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और वो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, Q1 इज इक्वल टू डेल्टा V1। तो डेल्टा V1 जो है आपके पास, यहाँ पर आप कौन सा लेंगे, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए, ये वाला। और C1 जो है वो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन डाटा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, C1 और डेल्टा V1 की मदद से अपना चार्ज कैलकुलेट कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फाइनल टॉपिक ऑफ आवर टूडेज डिस्कशन। अब वो क्या है आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास क्या बेसिकली कहता है कि अगर आपके पास एक अदद कैपेसिटर है तो वो कैपेसिटर क्या कर रहा है, वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है बेसिकली ये आपके पास फ्लैश लैंप्स में भी कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं और ये लेज़र सिस्टम्स के अंदर भी कैपेसिटर्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं। और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की मदद से हम बहुत सारे काम
इन द फ्लैश लैम्प्स भी ले रहे हैं और इन द लेज़र सिस्टम्स भी ले रहे हैं। अब वो यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी किस तरह आपके पास कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। अच्छा जी, अब कहता है कि एक अदद आपके पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके अंदर क्या है, एक चार्ज को रिप्रेजेंट किया है क्यू डैश से। क्यू डैश चार्ज की अमाउंट जो है वो आपके कैपेसिटर के अंदर जो है वो स्टोर है। अब प्लेट्स जो हैं एक सर्टेन टाइम जो है वो कहता है टी टाइम के अंदर आपके पास क्यू डैश चार्ज आपके पास एक अदद कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है जी, अब क्या है, ये टोटल चार्ज नहीं है, ये एक सर्टेन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है जिसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। वो कहता है कि अगर आपके पास एक अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो वहाँ पर एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोगों के पास, हमने भी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वैल्यू इक्वेशन निकाली थी, और वो इक्वेशन आपको याद होगा वो क्या थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। तो यहाँ पर आपके पास चूँकि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा वी डैश से। डेल्टा वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर सी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो कहता है कि अब क्या हुआ, कुछ और टाइम गुजर गया। ठीक है, ड्यूरिंग टाइम टी आपके पास जो स्टोर्ड चार्ज था उसकी अमाउंट थी क्यू डैश। फिर क्या हुआ, आपके पास कुछ और टाइम गुजर गया, और जब कुछ और टाइम गुजरा तो एक आपके पास चार्ज की अमाउंट डेफिनेटली दैट शुड इंक्रीज, और वो चार्ज की अमाउंट क्या हुई, इंक्रीज हो गई। एक इंक्रीमेंट लगा उसके अंदर और इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट किया डी क्यू डैश से। अब ये जो डी क्यू डैश था, डी क्यू डैश चार्ज जो है वो आपके पास क्या हुआ, शिफ्ट हुआ फ्रॉम पॉइंट आपके पास फ्रॉम द बैटरी। ठीक है जी, और ये बैटरी से जब चार्ज डिपॉजिट हुआ तो बेसिकली क्या हुआ, अगर आप बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज इन द पोजीशन हो रही है। और जब चेंज इन पोजीशन हो रही है तो चेंज इन पोजीशन को हम रिलेट करते हैं, अगर याद करें आप तो हमने बात ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं बेसिकली दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, और हमने ये बात की है कि हम लोग जिस तरह वहाँ पर एनर्जीज को डिस्कस करते थे ग्रेविटेशनल के अंदर, वैसे ही हम यहाँ पर अपनी फोर्सेस को डिस्कस कर सकते हैं और एनर्जीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर, जैसे ही चार्ज जो है दैट ट्रांसफर चेंज इन द पोजीशन, चेंज द पोजीशन हुई तो हमारे पास क्या हुआ, हम इसको रिलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो अब हमने एक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और वो इक्वेशन क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने निकाली थी। अब वो इक्वेशन थी आपके पास डेल्टा वी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी क्यू। हम अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज किस तरह से करेंगे इसको, हम इसमें अपना चेंज इन चार्ज, अब आपके पास क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज में चेंज आया है और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डी क्यू डैश से। तो आपकी ये जो इक्वेशन है इसको हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी किया, और इसमें हमने अपनी वैल्यूज़ को भी पुट किया। किन वैल्यूज़ को पुट किया, क्यू नॉट की जगह हमने क्या लिख देना है, डी क्यू डैश, और डी और डेल्टा यू की जगह हम लिखेंगे डी यू। क्यों, क्योंकि हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी जो है आपके पास वो स्मॉल चेंज के साथ लिखी जाएगी। और इसको अगर रीअरेंज करें इसी इक्वेशन को, तो रीअरेंज किस तरह से करेंगे आप, आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बनी है क्या, डेल्टा वी, ओके वी विल रिमूव ऑल दिस एंड द इक्वेशन, यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी क्यू डैश। ये आपके पास इक्वेशन बनी है। अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप रीअरेंज करें तो ये आपके पास इस तरफ चला जाएगा और आपके पास ये फॉर्म निकल आएगी, डेल्टा वी डैश। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, अभी आपने डेल्टा वी डैश की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, ये जो डेल्टा वी डैश की वैल्यू थी इसको हम यहाँ पर इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये फाइनल फॉर्म आ जाएगी डी यू की। बेसिकली आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी, जब चार्ज आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस स्टोर हो रहा है तो आपने क्या किया, आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया।
इन दिस इक्वेशन। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जितना भी चार्ज था वो कंप्लीट चार्ज Q था, ठीक है जी। तो टोटल चार्ज Q जो है वो क्या हो गया, हमारी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के अक्रॉस डिपॉजिट हो गया। तो जब ये प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के अक्रॉस डिपॉजिट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास कैपिटल U आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज था वो क्या हो गया, कैपिटल U हो गया। और अब क्या है, हमने अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, हम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए सिंपल क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। तो टोटल निकालने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। और ये डी यू जो है अगर आप देखें तो ये डी यू बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले डी यू कैलकुलेट किया है। और डी यू क्या कैलकुलेट किया है हमने, ये हमारे पास डी यू है। तो हम इस डी यू, इस इक्वेशन में इस डी यू की जगह उसकी ये वाली वैल्यू जो हम कैलकुलेट करके आए हैं वो पुट करेंगे। और जब ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, इस फॉर्म में से आप क्या करेंगे, अपना ये चार्ज जो है बेसिकली, ये चार्ज आपके पास क्या है, ये चार्ज आपके पास कांस्टेंट है फॉर दिस इंटेग्रल। ये चार्ज बाहर आ जाएगा और चार्ज बाहर आएगा तो आपके पास क्या रह जाएगी, इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। यू कैन राइट 1/c इंटेग्रल 0 to Q and Q dash और dq डैश। तो आपके पास क्या होगा, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इस इक्वेशन में आपको बताया गया। इसकी इंटीग्रेशन आप लोग बहुत सिंपल है, यू कैन डू इट, आप लोगों ने ऑलरेडी भी की हुई है मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर में। इंटीग्रेशन बहुत सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन है इसकी और वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और थोड़ा सा आसान सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगी, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि Q जो है वो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपके पास आई थी U वाली, इस इक्वेशन के अंदर Q की जगह उसकी यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, तो ये आपके पास क्या आया, U इज़ इक्वल टू Q की जगह हम लिखेंगे C डेल्टा V ओवर 2 एंड डिवीजन में आपके पास 2C आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप स्क्वायर को सेपरेट कर सकते हैं, स्क्वायर को अगर आप सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C स्क्वायर एंड डेल्टा V स्क्वायर ओवर 2C। तो ये C इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आप अगर इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू C एंड ये डेल्टा V के ऊपर आपके पास स्क्वायर, ठीक है जी। तो दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने क्या किया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें बताती नहीं है कि हमने कहाँ एनर्जी स्टोर की है। ये इक्वेशन हमें ये ज़रूर बता रही है कि एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है जी। और एनर्जी जब स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, हमने अभी स्टार्ट में बात की कि एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। तो उसके लिए एक आर्गुमेंट डेवलप किया साइंटिस्ट ने एंड अकॉर्डिंग टू दैट आर्गुमेंट कहता है कि इफ़ द सेपरेशन between the plates become twice as large, the capacitance becomes only half as large। अच्छा जी, सबसे पहली बात क्या है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, कैपेसिटेंस की इक्वेशन लिखी थी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, अगर आपको याद हो, और उसमें हमने कहा था कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की बेसिस पे वो एक आर्गुमेंट डेवलप कर रहा है
और वो क्या कह रहा है आपके पास आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग कि आपके पास क्या है कि अगर हम क्या करें कैपेसिटर की, अगर हम क्या करें ये कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उसके दरमियान डिस्टेंस को क्या कर दें, डबल कर दें। अगर आपने क्या किया, डिस्टेंस डबल किया, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर की वैल्यू, हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, तो कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है जी। और फिर क्या है आपके पास, फिर हमने अभी इक्वेशन जो ड्राइव की जिसमें हमने कहा कि हमारे पास u जो है वो बराबर है क्यू स्क्वायर ओवर 2c के। तो इस इक्वेशन में बात, इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम कहते हैं कि अगर हमारे पास c की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है तो c की वैल्यू जो है, अब हमने क्या किया, हाफ हो गई। जब हमने c की वैल्यू को हाफ किया तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड जो है वो डबल हो जाएगी। ऐसे ही हो रहा है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आपके पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो रही है, डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो कम हो रही है। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो रही है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है आपके पास, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं। और अगर हम अपनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक अदद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसके दरमियान जो स्पेसिंग थी उसको हमने d से रिप्रेजेंट किया हुआ था। अब मैंने क्या किया, अपनी प्लेट्स के बिटवीन स्पेसिंग को इंक्रीज कर दिया और वैल्यू ऑफ द स्पेसिंग जो है वो बढ़ाकर 2d कर दी। जब मैंने इसको 2d किया तो ये क्या हुआ, आपके पास डिनोमिनेटर में बढ़ी हुई वैल्यू जो है ये कम हुई, बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी और इसके नतीजे में ये वैल्यू कम हुई। और फिर क्या हुआ, आपके पास ये इक्वेशन पर हम पहुँचे तो इस इक्वेशन में आपके पास ये डिनोमिनेटर में बड़ी चीज़ कम हुई और नतीजे में आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई। तो हम यहाँ पर अच्छा बेसिकली अब क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। स्पेसिंग को बढ़ाने से हमने क्या किया, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन चेंज की है, लेकिन जो आपकी प्लेट्स हैं उनका मटेरियल चेंज नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ स्पेस बढ़ाने से क्या हुआ, आपके पास क्या हो गया, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ से हम ये इस आर्गुमेंट डेवलप करते हैं और यहाँ से हम इस कंक्लूजन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एनर्जी जो है वो प्लेट्स पर रिजाइड नहीं कर रही, बल्कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स है एनर्जी उस पर रिजाइड कर रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात कर रहे हैं। हम लोग एग्जांपल ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ले रहे हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आपने एक डायग्राम याद करें तो डायग्राम कुछ इस तरह से एक बनाई जाती थी एफएससी के अंदर। और वो डायग्राम में अगर हम ये पॉजिटिव्स लगा लेते हैं यहाँ और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव्स लगा देते हैं तो आप क्या याद करें कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन कुछ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है आई प्रिज्यूम। तो आपके पास ये क्या बन जाता है, आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप कैपेसिटर से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे चली जाती हैं। लेकिन अगर आप विद इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रहते हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म रहती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर हम बात ये जहन में रखेंगे अगली डिस्कशन से पहले कि आपके पास एक अदद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो यूनिफॉर्म होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर किसी एक सर्टेन रीजन के ऊपर एनर्जी स्टोर की वैल्यू निकालते हैं। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम। बेसिकली क्या है, हम लोग चार्ज डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, सॉरी एनर्जी डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर स्मॉल यू के साथ। और एनर्जी डेंसिटी जो है अगर आपको याद हो तो उसके लिए हमने डेंसिटी के लिए, एनर्जी डेंसिटी के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला आपके पास क्या था, एनर्जी ई पर यूनिट वॉल्यूम, ई पर वी।
तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है हमारे पास प्लेट्स का जो एरिया था, अगर आपको याद हो, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और डी जो थी वो स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स थी। तो जो वॉल्यूम है आपके पास, अगर आप याद करें, तो वो हमारे पास बराबर होता है डी ओवर ए इंटू डी के। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी यू से हमारे पास रिप्रेजेंटेड है, हम यू की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो भी हम पीछे निकाल कर आए हैं ये फाइनल इक्वेशन में से, और आपके पास ए की जगह डी आ जाएगा। अब हमने एक बात पढ़ी थी, हमने कैपेसिटर के लिए उसकी इक्वेशन जो है, बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटेंस की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हम ये अपनी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में लाकर पुट करेंगे, और जब इस इक्वेशन में पुट कर कर इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये फाइनल फॉर्म निकल आएगी। और इस फाइनल फॉर्म में अगर आप देखें तो ये जो डी डेल्टा वी ओवर डी है, ये बराबर होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये आपके पास क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकल आई फॉर आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप लोगों ने एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हमने ये बेसिकली हम लोगों ने इस आर्गूमेंट से हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि एनर्जी जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर नहीं स्टोर होती, बल्कि वो कैपेसिटर की इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर स्टोर होती है।